Hello and welcome to the channel. Today we will start permutation and combination exercise 6.4. In the last video, we have seen that some situations which is solved by permutations concept. But in this exercise, we are going to see where we have to apply combinations. All right. So the difference between permutations and combinations is, see, although I have told this difference in my introduction video, but if you have missed the introduction video, I will just tell you quickly what is the difference. But for the proper knowledge of the permutation and combination and the other things, you just should watch the introduction part and then move on to the exercise 6.4. All right. Now see, here I have X, Y, Z, and I have to pair them up. Okay. So how we can do that? See, either I will make XY or ZY or XZ or YX, YZ, ZX. Right? How many ways are there? You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6 ways are there. Can you see 6 ways are there? But here, on the other hand, you can see if I want to make them in a pair in such a way that the order does not matter at all. That means either if I write xy or yx, it will remain same. Okay. So here xy, you can see that xy, zy, and xz. Only 3 ways are there. So where the order does not matter is basically a combination. So this is the example of combination, but where the order actually matters is a combination. For example, if I have let's say you have a suitcase and there are some pin is there or 4-digit pin is there, okay, and we know that in this pin there we know that the digits are 2, 3, 4, and 5. Okay, but we don't know the order of these 2, 3, 4, 5. So when this pin, I mean, when you will be able to open your suitcase, only in the case you will put the correct pin in a particular order. So for let's say your order is 4, 5, 4, 3, 2. So then only you'll be able to open it. If you write 2, 2, 3, 4, 5, it will not open. If you write 3, 4, 5, 2, it will not open, right? So here the order matters. तो जब ऑर्डर मैटर करता है बेटा इसको हम कॉम्बिनेशंस बोलते हैं बट कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट व्हेन द ऑर्डर डज नॉट मैटर. Right. So let's say I have a team, I have 20 players and I have to select 10 players out of them. So 10 players I have to select. I don't have to select them कि first कौन होगा, second कौन होगा. I just have to select 10 players, right? वहां पर we will use combination. Understood, right? I hope you are getting the point what I'm trying to tell you here. So here you can see the formula of permutation which is already written here. So NBR is equals to n factorial by n minus r factorial. So the total number of things which are present is n. R is the number of things we are selecting from n. Okay, so this is the formula. For the combination, we'll write NCR and we will write the formula for the permutation and then we will divide it by the terms which are actually, repeating itself if the order does not matter, right? So R factorial will be there. Okay, so this is the formula for the combination. So on that note, let's get started with exercise 6.4. Okay. Now let's see question number 1. Question 1 is NC8 की वैल्यू क्या बोली है बेटा? NC2 के इक्वल. अब एक चीज बताओ, किसी के कॉम्बिनेशन की वैल्यू कब इक्वल होगी? ये दोनों का वैल्यू सेम होगी क्योंकि ऊपर देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास सेम, बस हमारे पास हम जो सिलेक्शन तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है. क्या प्रॉपर्टी होती है? NCP NCQ के इक्वल कब होगा? देखो ऊपर वाला तो सेम है, CC भी सेम है, तो या तो P Q के इक्वल होना चाहिए. आइदर दिस शुड बी इक्वल. और हमने ये देखा कि अगर मैं P और Q को ऐड करके मेरा N के इक्वल आ रहा है तब भी जो ये वैल्यू होती है सेम होती है. मतलब अगर मुझे मैं एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, तो हमारी जो वैल्यू है इसकी, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. सो लेट्स से मेरे पास 5 है, तो 5C3 और किसकी वैल्यू 5C2 की वैल्यू सेम होगी. क्यों? क्योंकि 3+2 क्या होता है? 5 ही होता है. देखो, ठीक है, तुम चेक करके देखना तुम्हारा आंसर सेम है. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं 5C किसकी वैल्यू लिखूं? 5 नहीं, मैं यहाँ पे लेट्स से मैंने लिया 6 और 7 ले लो. लो 7C, अगर मैंने यहाँ 3 लिखा
तो 7c किसके क्या लिखूं यहाँ पे, 4 4 + 3 तभी 7 होगा। तो ऐसे करके यू कैन चेक कि किसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। इवन यू कैन वेरीफाई, यू कैन जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द सेम नंबर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, या तो पी क्यू के इक्वल होना चाहिए और या तो फिर पी प्लस क्यू एन के इक्वल होना चाहिए। अब हमें दिख रहा है 8 2 के इक्वल तो है नहीं, तो 8 + 2 किसके इक्वल होना चाहिए, एन के इक्वल होना चाहिए। तो एन कितना बन गया बेटा, 10। दैट्स इट। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, 10। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है NC2 निकालो, मतलब 10C2 निकालो। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करें, क्या फॉर्मूला था, n फैक्टोरियल अपॉन, क्या फॉर्मूला था, 10 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला था बेटा, है ना। अब 10 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को क्या लिखो, 2 × 1। ठीक है, 8 से 8 गया, अब 2 से 5, 5 9 से कितना होता है बेटा, 45। दैट्स इट, 45 इज द आंसर। देखना तुम लोग कॉम्बिनेशन में, तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन से थोड़े तो इजी कैलकुलेशन होगी। क्यों बोल रही हूँ इजी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है ना हमारे पास जो आर फैक्टोरियल है वो भी डिवीजन में आ गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सी 2NC3 एंड NC3 रेशियो में दे रखा है, तो कैसे लिखेंगे, 2NC3 अपॉन NC3, ठीक, इक्वल्स टू 12/1। अंडरस्टूड। अब मैं 2NC3 को कैसे लिखूं, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दूं। नीचे क्या लिखूं, n फैक्टोरियल अपॉन n - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दूं, इज इक्वल्स टू 12/1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बेटा तुम लोगों को ये वाली चीज पता है कि ये वाली चीज यहाँ मल्टीप्लाई होती है थर्ड वाला, और ये वाली चीज फर्स्ट में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, 2n फैक्टोरियल इंटू n - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होल अपॉन में क्या बनेगा, 2n - 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उनको काट दो, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया। अब मैं 2n को क्या लिख सकती हूँ बेटा, जैसे हमारे पास 10 फैक्टोरियल होता है, हम क्या लिखते हैं, 10 × 9 × 8, मतलब 10 × 10 - 1 × 10 - 2 ऐसा होता है ना। सेम 2n है तो क्या बनेगा, 2n × 2n - 1 कहाँ तक जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में देखो कहाँ तक है, 3 तक है, तो हम 3 तक जाएंगे। ठीक है, 3 तक चले गए। अच्छा, आगे क्या है, n - 3 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, हमारा मेन एम क्या होता है इसमें, फैक्टोरियल को भगाना। ठीक, अभी ये 2n - 3 एज इट इज लिख दो। अब आता है नीचे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल भी सेम कहाँ तक जाएगा, ऊपर क्या है, n - 3 है, तो 2 लिखा मैंने और क्या लिखा, 3 लिखा। ठीक है, अब देखो मेरा सेम बन रहा है फैक्टोरियल के साथ, तो फैक्टोरियल के साथ जैसे ही बन रहा होता है ना बेटा, बिल्कुल काट दो उसको। ठीक है, तो ये कट जाएगा n - 3 फैक्टोरियल के साथ, n - 3 फैक्टोरियल के साथ, 2n - 3 फैक्टोरियल के साथ, 2n - 3 फैक्टोरियल का। अब हमारे पास जितने भी टर्म बच गए ना, वो बहुत ही सुंदर टर्म्स बच गए, हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ बिना फैक्टोरियल वाले। अब देखो मैं n से n भी कैंसिल कर सकती हूँ। ठीक है, इवन इन दोनों में से मैं 2 भी कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरा पास यहाँ 2 था ही ऑलरेडी, ये 2, फिर मैंने 2n - 1 लिखा, इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा बेटा, n - 1। नीचे क्या बचेगा, n - 1 n - 2 इज इक्वल्स टू 12/1। अब देखना n - 1 से n - 1 गया, अब जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 2n - 1, वहां क्या बचेगा, 12 इंटू n - 2। ठीक, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 4 3 ज़ा 12 ऐसे कट कर दो, तो ये बन जाएगा 2n - 1 इज इक्वल्स टू 3n - 6, और ये n इधर आ जाएगा तो n की वैल्यू, ये इधर आ जाएगा माइनस, और वो उधर चला जाएगा तो 5। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। हमें निकालना क्या था, डिटरमाइन n, तो n की वैल्यू आ गई 5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको। ठीक है, सेम अब इसमें भी देखो, इसमें भी क्या दे रखा है, 2NC3 और हमें दे रखा है NC3 इज इक्वल्स टू 11:1। बेटा सब कुछ सेम है, बस इसकी जगह पे यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज करूंगी, हम क्यों चेंज करें, पूरा सेम ही तो है, एग्जैक्टली सेम है।
तो मैं यहाँ चेंज करूंगी, इधर इधर 12, तो फिर मैं यहाँ पे पूरा चेंज कर दूंगी, बस हमारा सब कुछ सेम है। वाह, बेस्ट क्वेश्चन। देखो, चेंज कर रही हूँ, ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा, ये बनेगा 11। ठीक, कुछ और चेंजेस नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, नहीं दिख रहा है। ये हो जाएगा 11, और इधर हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा 11, और इधर हो जाएगा 11। अब कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2n - 1 इज इक्वल्स टू 11 n - 2। ठीक, 4 2 8n -4 इज इक्वल्स टू 11n -22। ठीक, अब 11n और 8n एक तरफ चल जाएगा, तो कितना बन जाएगा 3n, और ये हो जाएगा 22 -22 +4, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा बेटा 18। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 6 18। अंडरस्टूड? देखो, सारी चीजें सेम थी। ठीक है, मैंने शॉर्टकट किया, तुम लोग शॉर्टकट मत करना, तुम लोग फिर से करना, सो दैट यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। पहले हम समझते हैं कॉर्ड्स क्या होते हैं। देखो, ये तुम्हारा सर्कल टाइप का कुछ है। Now, chords means what? If I have 2 points on the circumference of the circle, मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं स्ट्रेट लाइन से, बेटा ये स्ट्रेट लाइन अज्यूम करना, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द chord. So let's say I have how many? I have one, 2 points are here. I have two more points. तो मैं ऐसे भी बना सकती हूँ chord. एक chord ये बन गया मेरा, एक chord ये बन गया मेरा, ये कितने chords बन गए? 3 chord बन गए। एक कॉर्ड मैं इसको बना दूं, एक कॉर्ड में, ओह सॉरी, मतलब तुम समझ जाओ मैं क्या बनाना चाह रही थी। जस्ट जॉइन दी पॉइंट्स, एक कॉर्ड ये बना देंगे हम, और ये भी बन जाएगा बेटा। ठीक है, और क्या बनेगा? ये बन गया, ये इसके साथ बन गया, ऐसे बन गया। नाउ सी, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन आई फॉर्म? देयर आर सो मेनी कॉर्ड्स, राइट? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे कॉर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे ही पॉइंट्स होंगे, तो हम कितने कॉर्ड्स, दे आर आस्किंग दैट इफ आई हैव 21 पॉइंट्स हियर, तो 21 पॉइंट्स में हम लोग कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब मतलब हम कॉर्ड को बनाने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स आई एम यूजिंग, कितने पॉइंट्स यूज कर रही हूँ, 1 और 2, सिर्फ दो ही पॉइंट तो यूज करें ना। एक कॉर्ड को बनाने के लिए आई एम यूजिंग 2 पॉइंट्स, है ना, और वो कहीं के भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, अब मेरे पास 4 थे, तो 4 में से मैं क्या कर रही हूँ, 2 को सिलेक्ट कर रही हूँ, फिर कॉर्ड बना रही हूँ, फिर 2 को सिलेक्ट कर रही हूँ, फिर कॉर्ड बना रही हूँ। मतलब व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट सेलेक्टिंग टू पॉइंट्स फ्रॉम आउट ऑफ 4 पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमें बोला 21 पॉइंट्स है, तो मेरे पास टोटल कितने हैं, 21। कितने से बनेगा मेरा कॉर्ड, 2 से बनेगा। तो क्या यूज करूँ, सिलेक्शन करना है तो 21C2, दैट्स इट। क्या होता है फॉर्मूला, 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 21 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 21 इंटू, नीचे देखो अगर मैं माइनस करूंगी तो क्या बनेगा बेटा, 19 फैक्टोरियल। तो 19 तक ले जाते हैं उसको, 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1। ठीक है, अब क्या करो, बस कैंसिल करो, यू गेट योर आंसर। आ जाएगा 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल गया, 2 10 20, तो देखो कितने कॉर्ड्स बने, 210 कॉर्ड्स। इतने कॉर्ड्स हम लोग कितने पॉइंट से बना पाएंगे, 21 पॉइंट्स। ठीक है, understood? Now you understood why we are applying this combination, because the order does not matter here. ठीक है, मैं कोई से भी पॉइंट्स में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? देखो, मेरे पास यहाँ पे 5 लड़कियां, 5 लड़के, एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, 5 लड़का। ठीक है, 4 गर्ल्स आर दर, 4 गर्ल्स, 1 2 3 4, ये बॉक्सेस गर्ल्स हैं, ये सर्कल बॉयज हैं। ठीक है, अब 5 बॉयज में से हाउ मेनी आई हैव टू सेलेक्ट, आई हैव टू सेलेक्ट 3 बॉयज एंड आई हैव टू सेलेक्ट 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4। मुझे सिर्फ सेलेक्ट करना है, मुझे ये नहीं बताना ऑर्डर क्या है क्या नहीं। ठीक है, हम वी आर ओनली सेलेक्टिंग द बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने क्या किया, इन तीनों लड़कों को सेलेक्ट कर दिया, और मैंने नहीं तो फिर क्या किया, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया, नहीं तो इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया, और आई हैव सेलेक्टेड फर्स्ट थर्ड और लास्ट वाले को सेलेक्ट कर दिया, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ वाले को सेलेक्ट कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग।
ठीक है, मतलब आउट ऑफ 5 बॉयज तो n कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सी हाउ मेनी बॉयज आई एम सेलेक्टिंग, 3 बॉयज आई एम सेलेक्टिंग, तो 5 C 3। आउट ऑफ 4 गर्ल्स, मैं कोई भी 3 लड़कियां सेलेक्ट कर सकती हूँ, तो 4 C 3। पर बेटा सुनो, अब बीच में आएगा मल्टीप्लाई की ऐड। हमें क्या बोला है, हमारी टीम कब बनेगी, हमारी टीम बनेगी जब मेरे पास 3 बॉयज और 3 गर्ल्स होंगी, तब जाके टीम बनेगी, मतलब तब जाके मेरा काम खत्म होगा। अगर मैं सिलेक्शन टीम में हूँ, मतलब अब मुझे सेलेक्ट करना है बेसिकली, तो फिर मेरे को टीम बनानी है। मैं टीम कब बना पाऊंगी, जब मैंने 3 लड़के और 3 लड़के सेलेक्ट कर दी। ऐसा तो नहीं मैं 3 बॉयज सेलेक्ट करके बैठ जाऊंगी या फिर 3 गर्ल्स करके सेलेक्ट करके बैठ जाऊंगी, ऐसा तो नहीं होगा। टीम तो तभी बनेगी। तो जब एक काम कंप्लीट होता है बेटा, उसको उस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। जब काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम दूसरा वाला पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, तो एडिशन होता है। लेकिन जब तक काम खत्म नहीं हुआ, जैसे मैंने पहले 3 लड़कों को सेलेक्ट किया, मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मुझे लड़कियों को भी सेलेक्ट करना है, देन आई हैव टू अप्लाई मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो में है, एक बार देख लेना। अदरवाइज जस्ट इतना समझ लो कि अगर काम खत्म नहीं होगा तो मल्टीप्लाई, काम खत्म हो गया, दूसरी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो एडिशन। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही बनेगा बेटा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 कितना होता है बेटा, 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 3 तक है। ये तो 1 फैक्टोरियल है और ये 3 फैक्टोरियल है। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया। ठीक है, अब देखो 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है, बेसिकली मैं इसको 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 4, क्या बचा, 5 इंटू 2 इंटू 4, दैट्स इट। 5 2 10, 10 4 40 वेज हैं हमें सेलेक्ट करने के, देर आर 40 वेज। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, अगेन सिलेक्शन इज देयर, सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, टोटल कितनी बॉल्स हमें सेलेक्ट करनी है, 9 बॉल्स, फ्रॉम हाउ मेनी रेड बॉल्स, 6 रेड बॉल्स। अब मेरे पास 6 रेड बॉल्स हैं, मेरे पास 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, देखो मुझे 9 चाहिए थी, उसमें से 3 इस कलर की चाहिए, 3 इस कलर की चाहिए और 3 ब्लू कलर की चाहिए। ओके, चलो, what happened? Just give me a second. हाँ, देखो मैंने क्या बताया कि 3 हमें ये चाहिए, 3 हमें ये चाहिए और 3 हमें ब्लू वाली बॉल चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मुझे 3 ब्लू बॉल चाहिए, तो यहाँ पे 3 नहीं लिख पा रही हूँ, हाँ लिख पा रही हूँ। तो अब मुझे क्या चाहिए, 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, 6 C 3, सिलेक्शन है ना। अब क्या मेरा काम खत्म हो गया, मेरे को 9 बॉल्स चाहिए थी, बट आई हैव ओनली सेलेक्टेड 3 बॉल्स सो फार, सो माई वर्क इज नॉट डन, आई विल पुट मल्टीप्लाई, देन आई हैव टू सेलेक्ट 3 व्हाइट बॉल फ्रॉम 5 बॉल्स, है ना, मल्टीप्लाई बाय आई हैव टू सेलेक्ट 3 ब्लू बॉल आउट ऑफ 5 बॉल्स। ये समझ में आ गया, मल्टीप्लाई क्यों लगा, समझ में आ गया। चलो गुड, तो ये क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। 6 फैक्टोरियल को 3 तक लिखते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दो, अपॉन ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल तो है ही। 5 को भी लिख दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और सेम ये भी आगे सेम ही है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब बेटा इसमें से जो वैल्यूज करनी है काट दो,
3 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल गया। अब जो बचा है उसको लिखते हैं। क्या बचेगा? 6 × 5 × 4। 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 to 1। ठीक है। इधर हमारे पास आएगा 5 × 4/2 × 1। और इधर आ जाएगा 5 × 4/2 × 1। अब 2 2 ज़ा 4 ऊपर वाला कट गया, 3 2 ज़ा 6 ऊपर वाला कट गया। क्या बचेगा बेटा? 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 × 5। कितना बचेगा? 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। 2 0 1 0 और 1 0। 2000 ways. I mean, are you getting? 2000 ways of selecting 3 red balls out of 6 red balls, 3 white balls out of 5 white balls, and 3 blue balls out of 5 blue balls. Right? So there are 2000 ways. Okay. Chalo. Moving on to the next one. See, this is the way of counting. हम लोग पहले कितने इजीली काउंट करते थे, 1 2 3 4 ऐसे ही तो काउंट करते थे। बट नाउ वी कैन नॉट काउंट इट लाइक 1 2 3 4 बिकॉज देयर आर 2000 वेज। ठीक है, इसीलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आया है। ओके, question number 6. Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each of the combination. हमें क्या बोला? देखो 52 cards होते हैं। Out of 52 cards, how many aces do we have? Ace कितने होते हैं? 4 aces होते हैं हमारे पास। 4 ace होते हैं। अगर 4 ace cards हो गए तो 48 कौन से cards हो जाएंगे हमारे पास? जो any card which is not ace, नॉन एस लिख दो, नॉन एस कार्ड्स हमारे पास हो गए, है ना। अब मुझे 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, उसमें से एग्जैक्टली एक तो एस होना चाहिए। मतलब मेरे पास एक तो एस बनना ही बनना चाहिए। तो एक एस बनना है मतलब 4 में से एक एस बनेगा, है ना। तो 4, मतलब मेरे पास टोटल 4 थे, मैंने एक सेलेक्ट करना है तो क्या बनेगा? 4C1। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 4C1। अब मेरा काम नहीं खत्म हुआ ना बेटा, बिकॉज आई हैव टू सेलेक्ट 5 कार्ड्स। आई विल पुट अ मल्टीप्लीकेशन साइन। कितने बच गए बेटा? अब टोटल देखो 4 थे। अब 48 में से हाउ मेनी आई हैव टू सेलेक्ट नाउ? 5 में से 5 कार्ड करने थे ना मुझे। एक तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो कितने बचे बेटा? 4। ये 4 कार्ड, ये देखो 5 कार्ड करने थे, 5 में से एक ये आ गया तो 4 ये बचा। बस खत्म। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 फैक्टोरियल into 1 factorial multiply by 48 factorial upon 48 minus 4 factorial into 4 factorial। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। 44 तक ही रहने देंगे बेटा। हम क्यों रहने देंगे? क्योंकि नीचे देखो हमारा 44 बन जाएगा। 44 फैक्टोरियल बनेगा, 4 फैक्टोरियल बनेगा। अब देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को उड़ा दो, 4 से 4 गया, 44 से 44 गया। हमारे पास सिर्फ क्या बचा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है? 3 इंटू 2, है ना। तो 6, तो 6 8 जा 48 हो गया। ठीक है, आंसर आ गया 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। Now, if you multiply all these numbers, you will get 7783220. So, number of 5 card combination, there are 7,78,320. इतने सारे combinations. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। समझ में आया ना हाउ वी आर यूजिंग, आई मीन व्हाई वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन एंड हाउ वी आर एक्चुअली यूजिंग इट। ठीक, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। बेटा मेरे पास टोटल 17 प्लेयर्स है, मुझे टोटल 17 में से कितने प्लेयर सेलेक्ट करने? 11 प्लेयर सेलेक्ट करने। ठीक है, 11 में से in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 ball। इस 17 में 5 bowlers हैं 17 में, तो कितने हमारे जो जो bowlers नहीं होंगे, नॉन bowlers होंगे, वो कितने हो जाएंगे? 12। नॉन bowlers मतलब जो फील्डर, बैट्समैन, ऑलराउंडर जो भी बोलते होंगे उनको। ठीक है,
ठीक। अब बेटा इस 11 में हमें क्या बोला हुआ है कि जो 11 की टीम बनेगी उसमें से 4 तो बॉलर होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये 5 में से हमने 4 सेलेक्ट करने। अब हमें बोला हुआ है कि हमें 11 की टीम में से 4 तो बॉलर हो गए, तो कितने बच गए हमारे, कितने वो नॉन बॉलर होने चाहिए। कितने नॉन बॉलर्स होने चाहिए हमारे पास? 7, है ना। 7 नॉन बॉलर्स होने चाहिए। अब मतलब जो बैट्समैन वगैरह होने चाहिए, तो 7 नॉन बॉलर्स मतलब मेरे पास बचे कितने थे प्लेयर्स उसके बाद? 12। तो 12 में से मेरे पास कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। समझ में आ गया? मतलब 5 बॉलर में से आई हैव टू सेलेक्ट 4 बॉलर्स मल्टीप्लाई बाय 12 नॉन बॉलर जो भी है हमारे पास, उसमें से 7 हमें सेलेक्ट कर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 5 में से 4, 12 में से 7। ठीक है, अब बस पुट कर दो वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल into 4 factorial into 12 factorial upon 12 minus 7 factorial into 7 factorial। तो बनेगा कितना बेटा तुम्हारा? 5 फैक्टोरियल अपॉन ये बनेगा तुम्हारे पास 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 कितना हुआ हमारे पास? 5। तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, ओके। अब सॉल्व करो। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया। 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तक लिख सकती हूँ। और 4 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो गया। 7 फैक्टोरियल, तो बेटा ये कितना बनेगा? 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और एक और हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 4 ज़ा 8 कर दो। ठीक, तो कितना बन जाएगा ये हमारे पास? 9 4 ज़ा 36 इंटू 11 इंटू 10। तो 36 इंटू 11 हो जाएगा हमारे पास 396 और 0। आंसर इज 3960। अंडरस्टूड कैसे करना है हम लोगों को? ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। एक बैग में 5 हमारे पास ब्लैक बॉल्स थी और 6 हमारे पास रेड बॉल्स थी। Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected। अब हमें क्या करना है? इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं बेटा? 2। ठीक है, इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं बेटा? 3। बस खत्म, सेलेक्ट करना है बोल रहे हैं वो। सेलेक्ट तो नॉर्मल करेंगे। टोटल कितने हो गए मेरे पास? 5। कितने सेलेक्ट कर रही हूँ? 2। मेरा काम खत्म नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई 6C3। ठीक है, जब तक काम खत्म नहीं होगा मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल एज इट इज। 2 को 2 इंटू 1। 6 को क्या लिख सकती हूँ? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहने देंगे, एक 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर देंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जो जो कट रहा है बेटा उसको वैल्यू को काट दो एंड यू विल गेट योर आंसर। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 3 2 ज़ा 6, तो 6 से 6 गया। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 इज 5 4 ज़ा 20। अच्छा ये नीचे भी बचा ना, 2 से 2 भी बचा बेटा, 2 तो ये 10 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर? 200। ये 2 बच गया था तो 200, नहीं तो 400 आ रहा था, लेकिन अब 200। दिस इज 200। ठीक है, ये हो जाएगा 200। अंडरस्टूड? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।
In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? देखो, टोटल कितने कोर्स हैं पहले ये समझो कि 9 मेरे पास कोर्सेस हैं। इन 9 कोर्सेस में से मेरे पास 2 ऐसे कोर्स हैं जो कि स्पेसिफिक कोर्स हैं और कंपलसरी। 9 में से 2 ऐसे कोर्स हैं, 2 कोर्सेस जो कि कंपलसरी। ये क्या है? कंपलसरी। कंपलसरी, ठीक है। ये 2 कंपलसरी कोर्सेस हैं। अब बेटा अगर ये 2 कंपलसरी कोर्सेस हैं, जो भी है, मेरे लेट्स सपोज ABCD जितना भी है, मेरे पास 2 पहले A और B बोला कि ये कंपलसरी, तो कितने कोर्सेस बच गए जो नॉन कंपलसरी है, मतलब जिनमें से हमें सेलेक्ट करना है? 2 चले गए, तो हाउ मेनी कोर्सेस आर लेफ्ट? 7 कोर्सेस। अब बेटा हमने बोला 5 का कोर्स, किसी एक स्टूडेंट को 5 का कोर्स बनाना था, लेकिन उस 5 के कोर्स में भी देखो उसको ये वाला तो लेना ही पड़ेगा ना, कंपलसरी वाला तो लेना ही पड़ेगा, है ना? तो अगर उस बच्चे को किसी 5 का कोर्स बनाना था, ये 9 कोर्सेस था, 5 का कोर्स बनाना था, उसमें से 2 तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये तो चाहिए ही चाहिए, 101% चाहिए। तो कितने और सेलेक्ट करेगा वो? 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा ना, आउट ऑफ कितने सेलेक्ट करेगा? 7। ये समझ में आया? 7 में से 3 सेलेक्ट करेगा। ये तो 2 तो कंपलसरी है, इसका तो कोई बनता ही नहीं। या तो तुम 2C2 कर दो, मर्जी है तुम्हारी, 2C2 का आंसर भी 1 ही आता है, या फिर तुम उसको छोड़ भी सकते हो। हमें बस क्या करना है? 7C3। 7 कहाँ से आया? 7 जो अवेलेबल कोर्सेज थे जो कंपलसरी नहीं थे, और उसमें से हमें 3, क्योंकि 5 में से 2 कोर्सेज तो कंपलसरी थे, तो 3 कोर्सेज सेलेक्ट करने। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कितना बन जाएगा? 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 3 को मैं लिख दो 3 × 2, तो 4 से 4 गया, 3 × 2 = 6, तो कितना बन जाएगा? 7 × 5 = 40, 7 × 5 = 35, सॉरी, 7 × 5 = 35, 35। ठीक है, तो कितने वेज में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं बेटा? 35 वेज में हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अंडरस्टूड? ठीक है, तो सी, ओनली 9 questions are there in this exercise. See how easy it is to apply the combination, right? But the only thing you need to understand that अब एग्जाम में तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि परम्यूटेशन का, तो तुम लोग को सिर्फ समझना होगा कि वेदर वी हैव टू सेलेक्ट और वी हैव टू मेक देम इन ऑर्डर एज वेल। तो जहां पर सिलेक्शन है वो कॉम्बिनेशन है, जहां पर हमें ऑर्डर में भी फॉर्म करना है वो परम्यूटेशन है। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक की चीजें? ठीक, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. And till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.